بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زین اسٹوری ٹی وی۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بےحد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملک اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے ہوئے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوکاف کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا تخت پر آسمان پر سیر کر رہا تھا، اس کا تخت جو ایک بڑے اژدھے کی شکل کا تھا، 4 خوفناک دیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک جادوئی اینک لگا رکھی تھی، اس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلاموں دیووں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئیں۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ ہاں ہاں، چلو اب واپس کوکاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوکاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورہ کے بعد اعلان کرایا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوکاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوکاف کا راستہ معلوم نہ تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑوا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لیٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا ہی چاہتا تھا۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا، سانپ نے چڑیا کو کھا لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زمین سے لٹکتی ڈھال اٹھائی۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال پر اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں پنکھ پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی، مگر یہ کیا، عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدمزاد، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر شہر کو نکل کر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانور پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا، میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوکاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوکاف تک جانے کا راستہ بتا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم نے بڑے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے قریب پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا، اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ
कोकाफ तक चले तो मैं आम दूंगा। आज कल आमों का मौसम नहीं है, मुझे यकीन है बोना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो बोना बादशाह भी बताएगा। उस्मान ने परी का शुक्रिया अदा किया और उसने अपना एक पर तोड़कर ताजर को दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पर को अपने बालों में लगा लेना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा खुदा हाफिज कहकर परी चली गई तो ताजर उस्मान उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर इसने हिदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। ये खुशबू बोनों की बस्ती में पहुंची तो सारे बोने बेकरार हो गए और बोने बादशाह के हमरा बाहर निकल आए। बोने बादशाह ने लिलचाई हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहाँ से ये आम लाए हो? हमें भी खाने के लिए आम दो। उस्मान गुस्से से बोला, चलो भागो यहाँ से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूं। हाँ, एक शर्त मान लो तो सारा आम दे सकता हूँ। बोने बादशाह ने जल्दी से कहा, शर्त बताओ। उस्मान बोला, तुम्हें मेरे साथ कोकाफ तक जाना होगा, अगर राजी हो तो ये आम तुम्हारा है। बोने ने जवाब दिया, मुझे तो कोकाफ तक जाने के रास्ते का इल्म नहीं। हाँ, यहाँ से 4 कोस दूर एक खूंखार जादूगरनी रहती है, उसे पता है, मगर वो तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भून कर हड़प कर जाती है, बोटियां तक चबा जाती है। लेकिन एक बात है, वो मानने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान इसके सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। सिर्फ मैं इन सवालों के जवाब जानता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। बोना बादशाह मान गया। उस्मान ने आम बोनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और इसे चट कर गई। अब उस्मान ने बोने बादशाह को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वो जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कहका लगाकर बोली, वाह वाह, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए इंसान, मैं तुम्हें पानी में उबाल कर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। उस्मान तो कांप उठा। जादूगरनी की शक्ल थी भी बड़ी भयानक। ये लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले जद दांत और काला सियाह रंग। इसकी गोद में एक मेंढक बैठा फड़क रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी उसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर उस्मान हिम्मत करके बोला, ये जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब देगा उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ये सुनकर चीख मार कर फर्श से उछल कर चलाई। तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हाँ हाँ, आज तक कोई इंसान दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। हाँ हाँ हाँ। जादूगरनी का कहका बड़ा भयानक था। उसका महल लरजने लगा। मेंढक इसकी गोद से उछल कर परे जा गिरा। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंके मारकर उड़ाया जा सकता है? उस्मान ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने इसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूंके उसे उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने यही जवाब दोहराया। जादूगरनी उछल कर चिंगाड़ी, लो, अब दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब दो। बताओ वो कौन सी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता? उस्मान ने फिर सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने कहा, जनाब, वो दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त पाकर जादूगरनी घबराई। उसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर उस्मान तीसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब हो गया तो जादूगरनी को उसे छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, ए इंसान, मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जाती। उस्मान ये सुनकर चकरा गया, मगर बोने बादशाह ने उसे जवाब बताया। उस्मान ने कहा, वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने जोर से धोतर मारा और चीखी, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अफसोस, मैं इसे भून कर खा नहीं सकती। जा, चला जा, मैं तुझे छोड़ती हूँ, तू आज़ाद है। उस्मान ने कहा, ए जादूगरनी, एक मेहरबानी कर, मुझे कोकाफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी को जिन की कैद से आज़ाद कराना चाहता हूँ। जादूगरनी कहने लगी, मैं तुम्हारे जहानत से खुश हूँ। लो, ये गेंद जमीन पर फेंक दे और इसके पीछे पीछे चलता जा। ये गेंद तुझे खून के दरिया के किनारे तक पहुँचा देगी। इस दरिया के पार कोकाफ की हदूद शुरू हो जाती है। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वही दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम इसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर एक पुल खुद ब खुद बन जाएगा, जिस पर गुजर कर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार, दरिया के खून में तैरने की कोशिश न करना,
वरना पत्थर बन जाओगे। उस्मान ने गेंद जमीन पर डाली, गेंद खुद ब खुद बढ़ने लगी और ताजर उस्मान इसके पीछे चलने लगा। बोना बादशाह इसकी जेब में था और उसे मजे मजे के लतीफे सुनाकर हंसा रहा था। अब हम शहजादी अफीन की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। पेटू जिन ने इसे चांदनी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और इसे मजबूर करता था कि उससे शादी कर ले। उस वक्त भी पेटू जिन कह रहा था, ए शहजादी मेरी बात मान ले, यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहजादी अफीन ये सुनकर रोने लगी। पेटू जिन ने उसे रोते हुए देखा तो हाथ जोड़कर बोला, रो मत प्यारी शहजादी, अभी तुम्हारे लिए मीठी गोलियां मंगवाता हूँ। पेटू जिन ने एक देव को गोलियां लाने का हुक्म दिया। वो ले आया, मगर ये क्या, खट्टी मीठी गोलियां फुटबॉल के साइज की थीं। लंबे लंबे बांसों में लिपटे हुए मोटे लॉलीपॉप थे और इंच इंच जितने चॉकलेट थे। पेटू जिन गुस्से से बोला, ए अहमक देव, तुम जिन्नों के खाने वाली गोलियां और लॉलीपॉप ले आए हो, जाओ इनके टुकड़े करके लाओ, इन्हें शहजादी ने खाना है। देव चला गया। पेटू जिन ने शहजादी को रोना बंद करने के लिए कहा, मगर वो रोती रही तो पेटू जिन गुस्से में आ गया और इसने जोर से दहाड़ा के महल कांप उठा। इसने कहा, ए नादान शहजादे, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच ले, या तो मुझसे शादी के लिए राजी हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। पेटू जिनी ये कहकर गुस्से से फुंकारता हुआ चला गया और शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगे। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। उसने सुन रखा था कि जो बच्चे और बड़े अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और कहना मानते हैं, अल्लाह मियाँ उनकी मदद फरमाता है। शहजादी को उम्मीद थी कि खुदा इसकी भी मदद करेगा। इधर ताजर उस्मान गेंद का ताक़ुब करता हुआ दरिया तक पहुंच गया। उसने देखा कि दरिया में पानी के बजाय खून बह रहा है और गाढ़ा खून। इस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। इसमें वो खूंखार चुड़ैल रहती थी जो दरिया की मुहाफिज थी। इस चुड़ैल ने ताजर की बो सूंघ ली थी और आदम बो के नारे लगाती हुई भागती चली आ रही थी। इस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। गले में सांपों की माला लटकी, लंबी सुर्ख जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। उस्मान और बादशाह एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल चिंखें मारती इधर आ रही थी। दरख्त के करीब आकर इसने कहका लगाया और तने पर जोर से हाथ मारा। दरख्त टूटकर दूर जा गिरा। उस्मान इसके नीचे आते आते बचा। उसने फौरन तलवार निकाली और कहा, एक खूंखार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकाल कर हंसने लगी। इसकी खौफनाक हंसी से बोलचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। इसने गरज कर कहा, तेरी ये मजाल, मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी, तेरा खून इस दरिया में बहा कर गोश्त खा जाऊंगी। उस्मान ने तलवार से वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर उस पर कोई असर न हुआ, इसे जख्म तक नहीं आया। अब तो उस्मान के हाथ पांव फूल गए। बोना बादशाह जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर उस्मान की तरफ बढ़ी। उसी वक्त उस्मान ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकाल कर बालों में लगाया। बस फिर क्या था, एक धमाके के साथ परी आमूदा हुई। इसके हाथ में सोने की कमान थी जिस पर फौलादी तीर चढ़ा हुआ था। इसने आते ही तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। इसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। इसकी आंखें बाहर उबल आईं और वो चीखती हुई मर गई। बड़े काम का बुरा अंजाम होता है। ये चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। उस्मान ने कहा, ए परी, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे और बोने बादशाह को मौत से बचा लिया। परी ने हंस कर जवाब दिया, जो कोई नेकी करते हैं उसका सिला उन्हें जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारे काम आ गई। अच्छा, खुदा हाफिज बोलकर परी वहां से चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। उस्मान उस पुल से गुजर कर कोकाफ में दाखिल हो गया। कोकाफ की सरजमीन पर कदम रखना था कि न जाने किधर से आवाजें आने लगी, ए नौजवान, भाग जा वरना मार डालेंगे, ये जिनों की बस्ती है, यहाँ इंसान का क्या काम, भाग जा भाग जा। पहले तो उस्मान ये आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। तलवार इसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। ये कोकाक का खूनी परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था। उसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था, रंग स्याह था और 4
टांगें थीं। इसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड के बजाय एक लंबी नुकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर उस्मान ने तलवार उठा ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ इसके सर पर आ पहुंचा। उसने अपनी गार जैसी चोंच खोली और बड़ी फुर्ती से झुककर उस्मान को निगल गया। उस्मान को लगा जैसे वो किसी गदीली सड़क पर फिसल रहा है। वो फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। वो इस उड़न हाथी का मैदा था। उस्मान मैदे में खड़ा हो गया। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर ये मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी थी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी थी। बोने बादशाह ने कहा, बाप रे, ये खौफनाक परिंदा मेरे बाप नहीं दादा बल्कि परदादा ने भी नहीं देखा होगा। उस्मान ने कहा, अब इस जगह से निकलें कैसे? कुछ देर यहाँ रहे तो इस परिंदे के मैदे के तेजाब हमें हजम कर लेगा। मेरा ख्याल है तलवार के जरिए सुराख करके बाहर निकलना चाहिए। उस्मान ने खुदा का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह कटा जैसे साबुन हो। वो चीखें मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से मैदे में गोया धंधला आ गया और उस्मान उड़न हाथी के पेट में कलबाजियां खाने लगा, मगर संभल कर वो तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने उस्मान को बाहर उगल दिया। उस्मान धड़म से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो उठा और तलवार उठा ली। उसी वक्त उड़न हाथी ने कराहते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदमजात, मुझे मारना नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर उस्मान हैरान रह गया। कोकाव बड़ी अजीब दुनिया है। वहाँ ऐसी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि अकल मानने से इनकार कर देती है। उस्मान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्नों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी। वो हमारे मुल्क की शहजादी को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ के उड़न हाथियों का सरदार हूँ। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह कर मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उस्मान आगे बढ़ गया। एक दिन और एक रात मुसलसल सफर के बाद पेटू जिन के महल पहुंच गया, जहाँ शहजादी अफशीन कैद थी। पेटू जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, वो कहके लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ये आदमजात, तू हमसे टक्कर लेने आया है? अपना कदम देख, अपनी ताकत देख, जा चला जा, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। उस्मान ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त जिन, गरूर ना कर, कभी कभी चूंटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। पेटू जिन तो गुस्से में आकर फुंकारने लगा। इसने अपने गुलाम देवों को हमला करने का हुक्म दिया। उस्मान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह कर पूरी ताकत से कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथी के छिट्टे आसमानों पर नमूदार हुए। हर तरफ अंधेरा छा गया। उड़न हाथियों ने अपनी चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए ये पत्थर देवों पर फेंकना शुरू कर दिए। एक देव की चमकती टिन पर पत्थर पड़ा तो वो तरबूज की तरह फट गई और देव मर गया। देखते ही देखते मैदान देवों की लाशों से भर गया। उस्मान महल में घुस गया। पेटू जिन कई गज लंबी तलवार थामे इसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हो गया। पेटू जिन बड़ा माहिर तलवारबाज था। उस्मान डट कर इसका मुकाबला कर रहा था, मगर पेटू जिन हार मानने को तैयार न था। बोने बादशाह ने ये देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी वाली गेंद निकालकर पूरे जोर से पेटू के मुंह पर मारा। गेंद फट गया और उससे काला धुआं निकला। पेटू जिन बेहोश हो गया। उस्मान ने लपक कर उसका सर काट लिया। पेटू जिन तड़पता हुआ खत्म हो गया। शहजादी अफशीन को चांदनी के पिंजरे से निकालकर उस्मान वापस चल दिया और मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुल्क रूम पहुंच गया। बादशाह और मलका ने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो खुशी से निहाल हो गए। उस्मान और शहजादी अफशीन की शादी हो गई। बादशाह ने तख्त व ताज भी उस्मान के हवाले कर दिया। फिर उस्मान ने कई साल तक बड़े अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी की।